डिस्कस कर लूंगा। चलिए लिखिए। लिखिए, करप्शन originates from a Latin word corruptus, यू है, corruptus, which means mar, bribe, dishonesty. Which means mar, bribe और dishonesty. एक और है destroy. ठीक, इतनी सारी मीनिंग्स हैं जहां से वो आया है। ठीक है, लिखो, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी defines corruption as dishonest or fraudulent conduct by those in power typically involving bribery. ठीक है, लिखो, it should be of no surprise that various thinkers like Aristotle, Kautilya, etc. have linked corruption with the inherent selfish and an unsatiating nature of human. मतलब कभी संतुष्ट नहीं होता मानव जो है, ठीक है, यू कैन नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अनसेटिएटिंग नेचर ऑफ ह्यूमंस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, therefore there is a general congruence of thought that corruption is as old as human civilization. ठीक है, लिखो, the first dynasty of ancient Egypt, ब्रैकेट में टाइम पीरियड लिख लो, 3100 to 2700 BC, 3100 to 2700 BC, noted corruption in its
judiciary. Noted corruption in its judiciary. Next लिखो, the practice also existed in ancient China. ठीक है, लिखो इन चाइनीज माइथोलॉजी every household has a kitchen god. Every household has a kitchen god who watches the behavior of its members. Every household has a kitchen god who watches the behavior of its members. Full stop. लिखो, a week before the Chinese New Year, this god ascends to heaven. This god ascends to the heaven. A week before Chinese New Year, this god ascends to the heaven to present his annual report card. And every household is rewarded or punished based on this annual report. ठीक है, लिखो similarly Greek historian Herodotus notes that how Alcmenoid family ये किंगडम होगी, कोई राजा वाजा होंगे वहां के. How Alcmenoid family offered to rebuild the temple of Apollo. If they could conquer and rule Athens. ठीक, भगवान को ब्राइब दी कि हम आपका टेम्पल रीबिल्ड कर देंगे यदि हम एथेंस को रूल करते हैं. ठीक है, लिखो क्या लिखा है, इफ वी कुड कॉन्कर एंड रूल एथेंस. ठीक है, लिखो दिस ऑफर एक्चुअली वर्कड and therefore Aristotle noted that even gods can be bribed. That even gods can be bribed. ठीक, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ, आपने मोटा मोटा बता दिया कि इट्स वेरी इनहेरेंट इन अ सोसाइटी कि करप्शन जो है ह्यूमन नेचर से ही आ रहा है. तब आप जाके फिर इनडिफरेंस और वो सब लिंक करोगे.
तो ये होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सोचते हुए, ठीक। इसमें एक चीज और लिख सकते हैं हम, लिखो लिखो सिमिलरली, सिमिलरली corruption has been talked about in Indian mythologies, in Indian mythologies, ठीक है। For example, Indra, Indra, known as the Lord of the Gods, sent his court dancers, sent his court dancers, अप्सराओं को, to spoil the meditation of rishis. Court dancers to spoil the meditation of ऋषि। कौन से ऋषि थे? मेनका, विश्वामित्र, ठीक है। लिखो लिखो इन अ सिमिलर वेन, इन अ सिमिलर वेन लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु डिसीव्ड राक्षस by becoming Mohini, by becoming Mohini, so that Rakshas could not become immortal. So that Rakshas could not become immortal. ठीक, तो अब नेक्स्ट लिखो, लिखो therefore, therefore corruption seems universal, comma, transcendental, ट्रांसेंडेंटल मतलब टाइम से भी है, सब जगह है, ठीक है। एंड अ पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, एंड अ पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन, ऑफ एवरी सोसाइटी। ठीक है, लिखो लिखो इन मॉडर्न टाइम्स, इन मॉडर्न टाइम्स as the global economy expanded significantly, in modern times as the global economy expanded significantly, the levels of corruption also increased, the levels of corruption also increased। ठीक है, लिखो लिखो टुडे वी टॉक अबाउट white collar crimes, today we talk about white collar crimes। ठीक, लिखो according to World Bank, according to World Bank, international bribery exceeds US $1.5 trillion annually, US $1.5 trillion annually, ठीक है, which is almost 2% of global GDP, which is almost 2% of global GDP, and 10 times more than
and 10 times more than total global aid funds. 10 times more than total global aid funds. ठीक है, जितना हेल्प नहीं कर रहे हैं उतना तो करप्शन में निकल जा रहा है. ठीक है, लिखो, टुडे करप्शन परमिएट्स, टुडे करप्शन परमिएट्स all levels of society, all levels of society, starting from low level public officials, low level public officials accepting bribes to the national leaders running away after stealing money. For example, Rajapakshas in Sri Lanka. ठीक है, नेक्स्ट लिखो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल there has been various analysis behind the reasons of corruption, behind the reasons of corruption, but two prominent theories, there are two prominent explanations come to the fore. ठीक है, देखो, both these explanations ultimately discuss how indifference, instability, corruption and revolutions are linked. ठीक है, देखो, फॉर एग्जाम्पल Aristotle in his theory of revolution says that, for example, Aristotle in his theory of revolution says that inequality, whether actual or perceived, makes people lose faith in the system and therefore people adopt different means such as indulging in corruption or revolting against the state to vent out their anger. Therefore,
State should try to assuage, ASSUGE, to assuage such feelings of inequalities, because eventually people may get disinterested in the administration of the system. Disinterested in the administration of the system. ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. लिखो सिमिलरली कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र, emphasize upon "40 ways of embezzlement." Emphasize upon 40 ways of embezzlement. EMBEZZLEMENT. ठीक, आज अभी इतना रखते हैं. अभी हम थोड़ा पॉल साइंस डिस्कस कर लें. जो आप लोग और लोग भी बैठ सकते हो. सिलेबस है सबके पास पॉल साइंस का? स्टार्ट हो गया ये क्लासेस? नहीं अभी. ठीक है, देखिए पॉल साइंस जो है it can be divided into two papers, paper 1 and paper 2. ठीक, paper 1 again has two sections, section A and section B. यहां पे भी section A and section B. ठीक, सेक्शन ए इज बेसिकली केटरिंग टू ऑल योर थिंकर्स. जो फॉर्डर होता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे सोशियोलॉजी में भी थिंकर विंकर हैं सब, ऐसे ही पॉल साइंस के सेक्शन ए के में जो है आपका, इसमें सारे थिंकर्स हैं आपके और थियरीज हैं. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की थियरीज आर लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब आपको थियरीज करनी है. थिंकर्स आपके वेस्टर्न हैं, देन ईस्ट इंडियन वाले हैं. ठीक है, आप जब भी पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस तो एक कॉमन थ्रेड ये रहेगा, हाउ वेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ईस्ट. ठीक है, व्हाट वेस्ट ऐसा क्या सोचते हैं जो उनको ईस्ट से डिफरेंट बनाता है. ठीक है, तो वील डू प्लेटो, एरिस्टोटल, माइकियावेली, बेंथम, लॉक, मिल्स, हैना अरेंट, कार्ल मार्क्स. ठीक है, फिर उधर जस्टिस की थियरी वेरी में आ जाएंगे. देन देयर इज आइडियोलॉजीज ऑल्सो, सारी टाइप की आइडियोलॉजीज हैं आपकी, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, फासिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म. ठीक है, और ये सब इंटरलिंक्ड है, मतलब यू कैन नॉट रीड पॉलिटिकल साइंस इन सिलोज, आपको एक एक सब में लिंकेजेस हैं. तो जब आप थिंकर करते हो ना एक एक, उसी समय आपका बेस आइडियोलॉजी के लिए भी रेडी हो जाता है. ठीक है, ये हो गया. इंडियन थिंकर्स में आपके हैं कौन कौन से हो गए, लाइक धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या होता है ये पढ़ना है. तो अर्थशास्त्र में बेसिकली यू स्टडी अबाउट कौटिल्य, धर्मशास्त्र में यू बेसिकली स्टडी अबाउट मनु. ठीक है, तो कैसे वर्ण व्यवस्था आ रही है. और 2-3 बार से ट्रेंड है, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑफ ऑल दीज थॉट्स, बिकॉज सी मनुस्मृति इज कंट्रोवर्शियल. ठीक है, अभी भी बीच में चालू हुआ था, कहीं यूपी में जला वला रहे थे कुछ लोग, तो इट्स कंट्रोवर्शियल. तो दे की ऑलवेज कीप आस्किंग दी कंटेम्पररी रेलेवेंस. ठीक है, या जैसे कौटिल्य को माइकियावेली से कंपेयर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कीप रिपीटिंग. ओके, देन यू हैव थिंकर्स में बुद्धिस्ट, बुद्धा का थॉट पढ़ना है आपको. देन यू हैव सर सैयद अहमद खान, औरबिंदो, गांधी, आम्बेडकर एंड एम एन रॉय. ठीक है, ये पूरा आपको उसमें पढ़ना है. खासियत ये है इस पोर्शन में कि ये जो थिंकर्स हैं आपके, ये सारे आपको एथिक्स में भी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं जाकर के.
हिस्ट्री में अभी मैं आ रहा हूं, इंडियन नेशनलिज्म जो है इट्स अ ह्यूज चंक ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री का जो आप नेशनल मूवमेंट पढ़ते हो ना, मॉडर्न वाला, वो बहुत फैक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हो, सो वो प्री का अलग हो गया पोर्शन। बट जैसे जीएस के मेंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक एक टाइम क्वेश्चन आया था कि हैड गांधी बीन नॉट देयर द कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वुड हैव बीन डिफरेंट। तो वो सब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लेते हो, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो एनालिटिकल पोर्शन है, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अराउंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, लिबरल पर्सपेक्टिव, ठीक है, देन हाउ द डिबेट अराउंड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीम्स इवॉल्व्ड, कांग्रेस का इवोल्यूशन, रेलेवेंस ऑफ कांग्रेस एटसेट्रा। तो ये सब जब आप करोगे तो आपको एनालिसिस पूरा आ जाएगा इसमें, बेसिकली फॉर जीएस मेंस आंसर राइटिंग। हाँ, फैक्ट्स आपको थोड़ा प्री के लिए अलग से करने पड़ेंगे, ऑप्शनल में उतने डीप में फैक्ट्स नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट ये हो गया। देन सेक्शन बी में, पेपर 1 में आपका पूरा फिर ये सब आ जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटी विच यू डू फॉर जीएस एंड व्हाट यू डू इन ऑप्शनल। अगेन सेम डिफरेंस, पॉलिटी में आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, उसके थोड़ा डीपर में जाकर के समझोगे, ठीक है, ये सेक्शन क्या बोल रहा है, आर्टिकल 19 अगर पढ़ रहे हो तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, वो सब आपको प्री के लिए याद करना है, दैट इज पार्ट ऑफ पॉलिटी। बट व्हेन यू डू ऑल द सेम थिंग्स इन पॉलिटिकल साइंस, आप एनालिसिस पढ़ेंगे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेटेस्ट जजमेंट क्या आया है, या हाउ दिस ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इवॉल्विंग नाउ, ठीक है। तो क्या जजमेंट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, न्यूज़पेपर में क्या ओपिनियन आ रहा है। तो बेसिकली इसमें आपको ना बहुत सारे ओपिनियंस याद करने पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रताप भानु मेहता दिस, अकॉर्डिंग टू देम दिस, ठीक है। जैसे सुहास पार्लिस्कर हैं, वो इंडियन इलेक्शन सिस्टम या इंडियन इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्री करते हैं। ये सब चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, घबराना नहीं है, क्योंकि ये इवेंचुअली जब आप मेंस लिखने जाते हो तब तक 8-10 रीडिंग हो जाती है। और हर थिंकर का ना हर राइटर का एक डोमेन है। जैसे आपको कम्युनलिज्म पे लिखना होगा तो क्रिस्टोफी जेफरलेट है, वही लिखते हैं ज़्यादा। इंडिया में कास्ट एथनिसिटी पे वही लिखते हैं ज़्यादा, तो उनका व्यूज़ आप एक बार लिख लो, याद लिखवा दिया जाता है क्लास में, वही लिखना है आपको, ठीक है। इसमें आप पूरा कास्ट वास्ट के बारे में पढ़ोगे, हाउ द रोल ऑफ कास्ट इज चेंजिंग, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड ऑल, ये सब मैटर में सोशियो लिंक्ड है। Then you also talk about in paper 1 only about all the commissions, federalism कैसा होता है। Then you also talk about party system and social movements, ठीक है। social movement पे हर साल क्वेश्चन आता है, they keep asking questions about old social movement, new social movement। फिर एक टिपिकल social movement भी उठा के पूछ लेंगे, like changing nature of farmers movement, changing nature of women movement, changing nature of workers movement etc, ठीक है। इसी से लिंक्ड है आपका पेपर 2 में सेक्शन ए में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वहां पे दे कीप आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हाउ सोशल मूवमेंट्स आर डिफरेंट बिटवीन डेवलप्ड सोसाइटीज एंड डेवलपिंग सोसाइटी। तो अमेरिका के वर्कर मूवमेंट में और इंडिया के वर्कर मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, अमेरिका के एनवायरमेंटल मूवमेंट में और इंडिया के एनवायरमेंटल मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये टॉपिक और ये वाला यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये वाला पोर्शन थोड़ा लिंक हो जाता है। सिमिलरली सेक्शन ए में है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब वो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है आपका पेपर 2 के सेक्शन ए से भी लिंक होगा, बिकॉज देयर यू विल टॉक अबाउट वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, कि भाई सोशलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या होती है। तो जब आप वो सब करोगे तो ही आपका सेक्शन ए का जो क्वेश्चन आता है, दैट देयर इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज डायनेमिक, इट इज चेंजिंग, तो वो सब लिंक होगा आपका वहां पे, ठीक है। तो काफी इंटरलिंकेजेस हैं आपके सेक्शन ए में भी, इधर पेपर 2 में भी, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू कम टू पेपर 2, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर आर की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर लाइक नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर, डेटरेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड कैपिटलिज्म, इकोनॉमी एटसेट्रा। ये सब चीजें देखो बिल्कुल कहाँ लिंक हो रही हैं आपकी, जीएस पेपर 2, पॉलिटी, आईआर, सब चीज। सेकेंडली ऐसे में बहुत हेल्पफुल रहता है यहाँ पे, क्योंकि आप सब चीज कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। भाई WTO IMF में क्या डिबेट्स हो रही हैं, वही चीज जीएस में पूछता है सब चीज उठा करके, ठीक है। कि भाई इंडिया का पीस क्लॉज क्या है, बाली पीस क्लॉज क्या है, इंडिया की एग्रीकल्चरल सब्सिडी या वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉज, ये सब पॉल साइंस में हो जाता है, ये सब बहुत डिटेल में ही होता है विथ लॉट ऑफ एनालिसिस, ओके। सिमिलरली चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर,
तो जैसे अभी लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे आर्टिकल्स आए न्यूज़पेपर में, हाउ इंटरनेशनल या ग्लोबल ऑर्डर इज चेंजिंग। पहले यूएस बेस्ड था, फिर अब चाइना भी पुश कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे चेंज हो रहा है, इंडिया के लिए क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इंडिया अपना कोई एक ग्लोबल ऑर्डर चाहता है, तो ये सब डिबेट्स हैं, ठीक है, वो सब कराई जाती हैं इसमें पॉलिटिकल साइंस में। देन देयर आर रोज ऑफ योर यूनाइटेड नेशंस, नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करती हैं, रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आसियान, ईयू, सार्क, नाफ्टा, ये सब पढ़ना है हमको, ठीक है। तो जैसे आज मैंने वो लिखा था ना, कॉम्प्रिहेंसिव सीटीटीपीसी न्यूज़पेपर से बताया है, तो ये सब चीज पॉल साइंस में आती है इवेंचुअली, ठीक है। ये सब चीज आपको करना है। फिर पेपर 2 में सेक्शन बी जो है वो इंडिया स्पेसिफिक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। जैसे अभी जयशंकर इंडियन इंस्टीट्यूट वो है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, आईसीसीआर, उसका बहुत रोल प्रोमिनेंट हो रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। इट्स ट्राइंग टू क्रिएट न्यू योगा कोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, या इंडियन डायस्पोरा है, या इंडियंस हैं जो भी अमेरिका में, जैसे अभी मोदी जी गए यूएस, तो कई तैयारियां जो है इंडियंस करते हैं वहां पे, स्क्वायर पे, स्ट्रीट पे, ठीक है, जो मोदी चल रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज इंडियाज कल्चरल कैपिटल अब्रॉड, एंड फ्रॉम देयर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये सब हम इसमें करते हैं। फिर इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइनमेंट, फिर इंडिया एंड साउथ एशिया में सार्क है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, लॉट ऑफ फिर रीजनल कोऑपरेशन में इंडिया और उसके नेबर से क्या रिलेशंस हैं, तो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स क्या क्या है इंडिया के, लाइक बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, चाइना से है, वो सब आपको डिटेल में करना है। इंटरनल सिक्योरिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, इंसर्जेंसीज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ये सब डिटेल में करोगे आप। फिर इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो अभी ग्लोबल साउथ कर रहा है इंडिया बहुत ज्यादा, क्यों कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में भी है, तो आप लोग का बर्डन बढ़ जाता है जब जब इंडिया ग्लोबल साउथ बोलता है। हिंदू में 5 दिन पहले आर्टिकल आया, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लोबल साउथ, पढ़ा किसी ने, आपने पढ़ा था, ठीक है। वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, वो सेव करने लायक आर्टिकल था, ठीक है। सिमिलरली इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या न्यूक्लियर अपार्थीड इंडिया से हटना चाहिए, लाइक हाउ मच इंडिया यूएस हैव कन्वर्ज्ड ऑन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर इशू में इंडिया चाइना इक्वेशन भी आ जाती है, इंडिया चाइना पाकिस्तान इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी लाइक अफगानिस्तान, इराक, वेस्ट एशिया, तो देखो जैसे हम वेस्टर्न क्वाड अभी हमने बना दिया मिडिल ईस्ट के साथ, ठीक है। यूएस इजराइल विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दिस इज पॉल साइंस सिलेबस, एंड दिस हेल्प्स अ लॉट इन योर जीएस पेपर 2 पॉलिटी, आईआर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जीएस पेपर 1 थोड़े बहुत सोशल इश्यूज, गवर्नेंस के टॉपिक्स, ठीक है, कास्ट, क्लास, ये सब पेपर 1 में भी है, सोशल मूवमेंट्स पेपर 1 में। कमिंग टू पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, इंसर्जेंसी, ठीक है। इकोनॉमी में जैसे आईएमएफ डब्ल्यूटीओ वाला जो पोर्शन है वो पेपर 3 से कनेक्ट होता है। कमिंग टू पेपर 4 एथिक्स, तो पूरा पॉल साइंस है ही है, यू नीड रीड फिलोसोफर्स, यू रीड थिंकर्स, ठीक है। सीवीसी, ये सब चार्टर वाटर, करप्शन वरप्शन सब हो ही रहा है इसमें, ठीक। सो दिस इज पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। पेपर भी लगभग 80% जो क्लास में कराया जाता है उससे आता है, ठीक है। और देन देयर इज अ सेपरेट टेस्ट सीरीज फॉर पॉलिटिकल साइंस, उसमें आप लोग 25 टेस्ट लिख लेते हो अपने मेंस तक, इसमें उसमें क्रैश कोर्स भी दिया जाता है, तो जिनका प्री निकलता है जल्दी जल्दी रिवीजन करवाया जाता है, बट इट इज एन एजम्पशन दैट यू हैव ऑलरेडी डन योर कोर्स, मेन कोर्स, ठीक है। वो साथ में जल्दी जल्दी बस आंसर राइटिंग पे फोकस किया जा रहा होता है उसमें। पेपर सिमिलरली ऑन द सिमिलर क्लास टेस्ट टफ होता है, पेपर इजी आता है, so if you are able to write class tests easily you will be good in paper also। इस साल की फर्स्ट रैंकर इज मैम की स्टूडेंट रही हैं, ठीक है। इससे पहले टीना डाबी थी। तो पॉल साइंस के टॉप 100 में मान के चलो 20-25 रिजल्ट्स होते ही हैं, 20 तो मिनिमम होते ही हैं, ठीक है। एंड वी कीप चेंजिंग नोट्स एवरी ईयर, एवरी बैच में नया नया कुछ पढ़ते पढ़ते नया नया ऐड करवाते रहते हैं। एंड यू डोंट हैव टू रिफर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग डिक्टेटेड इन क्लास, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक अखबार पढ़िए और बाकी जीएस पे ध्यान दो अपना, बहुत लिखाया जाता है क्लास में, ठीक। एनी डाउट, कुछ पूछना है आप लोग को, पूछना हो पूछ लीजिए। और थोड़ा मतलब सिलेबस चलता है 6-7 महीने खिंच जाता है क्योंकि सब चीज कराई जाती है क्लास में, एंड वी स्पेसिफिकली से नो नीड टू रिफर एनी बुक, क्योंकि बुक्स आर नॉट मेंट फॉर यूपीएससी, दे आर मेंट फॉर यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, तो वो उस वैसे इंटरलिंकेजेस करके नहीं समझाते वो लोग,
ठीक, दैट इज इट फॉर पॉलिटिकल साइंस। कल हम सोशियोलॉजी थोड़ा केटर करेंगे, ठीक है, और ये ऐसे कंटिन्यू करेंगे, और कल डेमोक्रेसी का ऐसे खत्म करना है हमें, 2 ऐसे खत्म करने कल भी। ठीक, दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे। कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप लोग, या कल पूछ सोच के आना।